ہاں ہاں، یہ مائیں بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ نوجوانوں، ان ماؤں کی قدر کرو۔ میری ماں ابھی تقریباً 1 ماہ قبل سخت بیمار ہو گئی، بستر علالت پر پڑی ہوئی، میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اللہ کا فضل ہے، بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ میری ماں پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے پورے طور پر کھڑی ہو کر کے۔ اللہ نے میری والدہ کو صحت عطا فرما دی، 80 سال کی عمر ہو گئی، لیکن لیکن میری والدہ کی تہجد نہیں چھوٹا کرتی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا، صبح کا وقت، تہجد کا وقت تھا، میری امی نے سر پر ہاتھ رکھا، ایسا لگتا تھا ساری کائنات کی خوشیاں میری ماں نے میری جھولی میں ڈال دی ہو۔ اور شاید مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بنگال والوں کی محبتیں میرے حصے میں آ جائیں گی، کہ ماں کی دعائیں مجھے مل گئی ہیں۔ نوجوانوں، گھروں سے اپنے کام پہ نکلا کرو، بزنس پہ نکلا کرو، دکان پہ نکلا کرو، سفر کو نکلا کرو، اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو۔ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دعائیں دے دی، دنیا کے تمام حادثات سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہاں ہاں، اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ماں باپ کی بد دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔ نوجوانوں، ماں کی قدر کرو، ماں کی خبرگیری کرو۔ ماں کے ساتھ بڑا ذلیلانہ پورے طور پر طرز اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ماں کی عزت نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے۔ بوڑھی ماں سسکتی پڑی رہتی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے اتاری ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، ستارے اللہ کی نعمت ہے، سیارے اللہ کی نعمت ہے، درخت اللہ کی نعمت ہے، جمادات اللہ کی نعمت ہے، نباتات اللہ کی نعمت ہے، ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے، یہ بال اور کھال اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھ اور کان اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن میں سلمان کا ایمان یہ ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے۔ ہاں ہاں نوجوانوں، ان ماؤں کی اگر تم نے قدر نہیں کی، ان ماؤں کی قدر نہیں کی، خوب یاد رکھو، اگر یہ مائیں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، جس دن اماں کا جنازہ اٹھ گیا، تم روتے پھرو گے، ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تم اپنی ماں کا پیار نہیں پا پاؤ گے۔ گھر میں آؤ گے، تمہیں ابو کہنے والے بیٹے تو مل جائیں گے، چاچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، ماما کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، تم کو دوست تو مل جائیں گے، بیٹیاں تو مل جائیں گی، لیکن ماں اگر چلی گئی تو ماں زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتی۔ باپ چلا گیا تو زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتا۔ ہاں ہاں، اپنی ماں کی قدر کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کو راضی کرنا۔ نوجوانوں، یہی ماں ہے جس نے ہماری نوکرانی بن کر خدمت کی ہے۔ پتہ دیکھو تو صحیح، یہی ماں ہے جس نے بچپن میں ہمیں 9 مہینے پیٹ میں پالا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب ماں پر ڈاکٹر نے منع کر دیا تجھے یہ چیز پسند ہے لیکن نہیں کھا سکتی، بچے پر اثر پڑے گا۔ ہماری ماں نے وہ چیز کھانا بند کر دی، بچے ڈاکٹر نے منع کیا یہ چیز تم استعمال نہیں کر سکتی، ہماری ماں نے ایام حمل میں وہ چیزیں نہیں کھائیں۔ ہاں ہاں، ساری رات بے چینی میں گزار دیا کرتی ہے۔ درد اتنی شدید ماں کو ہوتی ہے جب پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنِيُّ، وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنِيُّ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ کوئی مائی کلال مرد ہے ایسا جو 2-4 کلو کا پتھر باندھ کر 9 مہینے گھوم کر کے دکھائے؟ یہ ہماری ماں ہے جو 2-2.5 کلو کا بچہ لیے مہینوں پھرا کرتی ہے، شادیوں میں بھی جا رہی ہے، کروٹیں بدل کر ساری رات گزار رہی ہے، تم تو پڑے سو جاتے ہو۔ مائیں بیچاری بے چین پڑی رہتی ہے، ان کے درد ہوتی ہے، میڈیسن نہیں لیتی، کہیں میرے بچے پر اثر نہ ہو جائے، اس کروٹ لیٹتی ہیں، کبھی اس کروٹ لیٹتی ہیں، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہیں، تم تو آدھی رات کو پڑے سوئے رہتے ہو، تمہاری مائیں بے چینی کی حالت میں گزار دیا کرتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، اطاعت والدین کی کرنی ہے، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ پھر دیکھو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر جب پیدائش کا وقت آیا، یہ تو زندگی اور موت کی باری ہوتی ہے، کتنی شدید صدمہ عظیم برداشت کر کے میری ماں
माएँ जनती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, सारा जिस्म का खून निकल गया, सारा जिस्म का पूरे तौर पर ताकत निकल गई, सारा जिस्म सूज गया, बदन टूट गया, नस नस फट गई। लेकिन अम्मा ने जैसे बच्चे का चेहरा देखा, जैसे ही अम्मा को होश आया, सबसे पहले माँ ने यही लफ्ज पूछा है, बताओ मेरा बेटा कैसा है, बताओ मेरी बेटी कैसी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह नहीं की, बल्कि अपने बच्चे की फिक्र की है, हमारी फिक्र की है, अपने आप की फिक्र की है। जैसे अपने बच्चे को चेहरे को देखा है, बच्चा गंदगी में लथपथ है, लेकिन वो पैदा करने वाली माँ के दिल में रब ने करोड़ों दर्जे क्या मोहब्बत डाल दी। उसने यूं गंदगी समेत अपने बच्चे को छातियों से लगा लिया। हाय हाय हाय, हम अपनी माँ की हक को कैसे अदा कर सकते हैं? वो हमारे चेहरे को देखती है, अपने दुख भूल रही है, हमारी मुस्कुराहट देखती है, अपने दर्द भूल रही है। अब वो अपना दर्द जिदा भूल चुकी है, अब वो अपनी दर्द भूल चुकी है, सारी तकलीफें भूल चुकी है। अब बच्चे की फिक्र में लग गई, हाँ हाँ, अब बच्चे की उंगली पकड़ने लग गई, छातियों से लगाए फिरती है अपनी। अब जब तक बच्चा माँ के पेट में रहा, उस वक्त तक भी वो बेचैन रही। इधर बार बार रात होती है, मासूम सा 2 दिन का बच्चा है, रात में उठ करके माँ बार बार अपने बच्चे को निहारती है, कहीं मेरा बच्चा जाग तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है। जरा सा बच्चा रोता है, माँ की नींदें हराम हो जाया करती है, जरा सा बच्चे को बुखार आता है, बाप की नींदें हराम हो जाया करती है, बीमार ये होता है, नींदें उनकी खराब हो जाया करती है। सर्दी का मौसम है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अम्मा गीले में आकर के लेट गई, अपने लाल को उठाकर सीने से लगा लिया ताकि मेरे बच्चे को सर्दी न लगे। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ। फिर इसी माँ ने बचपन में हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें दौड़ना सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हमें दुनिया की तमाम हादसात से वाकिफ कराया, दुनिया की तमीज़ें सिखाई। हाँ हाँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ईद का मौका आता है, हमारे घरों में गरीब लोग होते थे, हमारी अम्मा कहती थी हमारे कपड़े मत बनवाना, हमारे बेटे के कपड़े ला देना ताकि हमारे बेटे की ईद हो जाए। हमारे अब्बा कहते थे हम अपने लिए जूते नहीं लाएंगे, अपने भैया के जूते ले आएंगे ताकि हमारे भैया की ईद हो जाए। हाय हाय, आज वही माँ वही बाप जब बूढ़े हो गए, बेटा वही जवान हो गया, तो वही माँ बाप की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। शर्म नहीं आती उस नौजवान नाफरमान बेटे को जो अपनी माँ को गालियां देता है, अपनी माँ को धक्के देता है। नहीं बख्शवा पाएंगी इबादतें, नहीं बख्शवा पाएंगी तुम्हें तुम्हारी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगी तुम्हें तुम्हारी तमाम के तमाम इबादतें। अगर शरीयत ने अगर लगाई है, अगर माँ बाप नाराज है, सर्व तीर्थ मई माता, सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजेत। तमाम तीर्थों से बढ़कर तेरे पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। हाँ हाँ, माँ पड़ी सिसक रही है घर में, दवाई के पैसे बेटे के पास, कमबख्त के पास नहीं है। बेटा वृंदावन जा रहा है, मथुरा जा रहा है, काशी जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, मक्का मदीना में जा रहा है, सोच रहा है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह मान जाएगा। फरमा नहीं, सर्व तीर्थ मई माता, सर्वदेव मय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजेत। तो अपने माता पिता की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम के तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। हाँ हाँ, अपने माँ बाप को खुश कर लो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जिस दिन ये माँ बाप चले गए, रोते फिरोगे। और एक मेरी बात नोट करके लेके जाना, अगर आज तुमने आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो खूब याद रखना, कल तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। करोगे इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत। अब एक नारा तो बनता ही था जबरदस्त, नारा तकबीर। मुफ्ती सलमान साहब थोड़ा सा मेरे फेफड़ों पर रहम कर दिया नारे लगा कर। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। माँ बाप की खिदमत ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है?
मूसा कलीमुल्लाह नाम जानते हैं आप? कितने लोग नाम जानते हैं? कितने लोग नाम जानते हैं? माशाल्लाह सारे जानते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम कहते हैं बातें करने वालों को। कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा रब्बुल जलाल से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अल्लाह तो जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? रब्बुल जलाल ने फरमाया, तेरा साथी एक गोश्त बेचने वाले को बनाऊंगा। अल्लाह, किसे बनाऊंगा? गोश्त बेचने वाले को, कसाई को। हमारे यहाँ यूपी में कसाई बोलते हैं, गोश्त काटने वाले को, जो गोश्त काट के बेचते हैं, या पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ भी बोलेंगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आगाह फरमा दिया। एक कसाई तेरा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह मियाँ, हमारा साथी और कसाई कोई और आपको मिला ही नहीं। तो फरमाया, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। कहा, अच्छा उसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, दुकान कहाँ है, करता क्या है, अल्लाह उसका घर कहाँ है, मुझे बता दीजिए। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ और उसके ऐसे आमाल देखना चाहता हूँ, इसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया, उसका नाम ये है, फला जगह उसकी दुकान है, उसका रंग ऐसा है, कद काठी ऐसी है। मूसा कलीमुल्लाह गए तो जा करके देखा, एक नौजवान बैठा हुआ है और बैठ करके गोश्त के टुकड़े काट रहा है। काट करके पॉलिथीन में पैक कर रहा है, पैक करके बेच रहा है। कोई विर्द नहीं कर रहा, कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो शाम तक वो गोश्त बेचता रहा। जब शाम को चलने लग गया, बहुत गौर से सुनना नौजवानों, जब शाम को चलने लग गया तो एक गोश्त की थैली अपने थैले में डाल ली और घर की तरफ चला। पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लगे, पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लगे। कहा, भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, ये थोड़ा ही बताया कि मैं वक्त का नबी मूसा हूँ। वो तो मुसाफिर ही समझ रहा था नौजवान ना, कि ये मुसाफिर है। कहने लगे, भाई मैं मुसाफिर हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो एक रात मैं आपके साथ घर में रुकना चाहता हूँ, इजाजत दे दीजिए। मूसा कलीमुल्लाह सोचते थे, जाकर के इसके अमल देखूं, कौन सा ये अमल करता है कि अल्लाह इसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। जो दुकान पर तो कोई अमल ऐसा नजर नहीं आया, घर में जाने का ये बहाना बनाया और उस भाई ने इजाजत दे दी। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ घर तशरीफ लाए। देखा उसके घर में, इजाजत लेकर घर में दाखिल हुए। अंदर बीवी भी है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, सारे मौजूद हैं। गया, घर वालों को सलाम किया। सलाम करने के बाद सीधा एक कोठरी में, एक दूसरे रूम में, कमरे में चलाया। देखा वहां एक बूढ़ी माँ बैठी हुई, लेटी हुई थी। गया, अम्मी जान को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मी जान को सलाम किया, अम्मी को सलाम किया, उसकी पेशानी को, माथे को चूम करके पूरे तौर पर खैरियत मालूम की। फिर सीधा किचन में आ गया, रसोई घर में आ गया, बावर्ची खाने में आ गया, खाना पकाने के लिए आ गया। जो गोश्त लाया था अपने हाथों से उसको धुलने लग गया। बीवी आई और आकर के कहने लगी, लाओ मैं अपने आप से धुलती हूँ ना, मैं अपने आप से पकाती हूँ ना। फरमाया, नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी माँ लेटी हुई है, बूढ़ी माँ, इसने बचपन में मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने मुझे बहुत दिनों तक खिलाया है। क्या एक दिन मैं इसे सालन बनाकर नहीं खिला सकता? क्या एक दिन मैं इसे रोटी बनाकर नहीं खिला सकता? नहीं, आज मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से बना हुआ सालन खिलाऊं। बीवी की मदद नहीं ली, बेटे की मदद नहीं ली, बेटी की मदद नहीं ली, खुद अपने हाथों से सालन पकाया, उसके बाद रोटी बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर उसको एक थाल में सजाया। सजाने के बाद उसको लेकर के अम्मा के कमरे में आया, और अपनी गोद को, अपनी सीने को कुर्सी बना लिया, टेक लगा करके अपनी माँ को बिठाया और बारीक बारीक टुकड़े तोड़ तोड़ के अपनी माँ के मुंह में यूं आगे से डालता रहा। अम्मा बेचारी बूढ़ी थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है, बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजर देख रहे हैं, आंखों में आंसू है। थोड़ी देर के बाद अम्मा कहने लगी, बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर। ये कहने लगा, नहीं अम्मा, थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। बचपन में जब मैं छोटा था आप मुझे लुकमे खिलाया करती थी, मैं मना करता था, आप जबरदस्ती कहती थी बेटा थोड़ा और खा लीजिए, बेटा थोड़ा और खा लीजिए। अम्मा जान, आज मैं आपका बेटा हूँ, आपसे कह रहा हूँ अम्मा थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। इतनी मोहब्बत से जब बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है। खाने के बाद जब उसको अम्मा ने कहा बेटा अब बस कर, अम्मा को लिटा दिया, उसके पैर दबाने लग गया, उसके पैर दबाने
लग गया, उसकी सेवा करने लग गया, उसके मुंह को साफ किया, सर दबाया, पैर दबाया। अम्मा कहने लगी बेटा सारा दिन तो दुकान पर काम करता रहा है, सारा दिन तो अपनी तिजारत करता रहा है, सारा दिन गोश्त बेचता रहा है, बेटा थक गया होगा, जा तेरी बीवी इंतजार कर रही है, जा तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जा तेरे बेटे इंतजार कर रहे हैं, जा बीवी के पास चला जा, जा बेटे के पास चला जा, जा बेटी के पास चला जा, जा बेटे आराम कर ले, बूढ़ी माँ को यूं ही पड़ी रहने दे। वो नौजवान कहने लगा अम्मा जान मुझे अपनी खिदमत से पूरे तौर पर आप अलग मत कीजिए। अम्मा जान बचपन में आपने मेरी कितनी खिदमत की है, पता नहीं कितनी रातों को मेरे सरों में तेल की मालिश की है, पता नहीं कितनी रातों को सर में दर्द होता था तो आप मुझे पूरे तौर पर दर्द से बचाने के लिए सर में तेल की मालिश किया करती थी। अम्मा जान मुझे अपनी खिदमत करने दीजिए। जब बेटा माँ की खिदमत कर रहा है तो उस बूढ़ी माँ के हाथ आसमान की तरफ अचानक उठने लग गए, लड़खड़ाते हुए बूढ़े लरसते हुए हाथ आसमान की तरफ उठे और न जाने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से पता नहीं कौन सी दुआ कर रही थी। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे भाई ये कौन है, ये क्या दुआ मांग रही है, ये कौन है, क्या कह रही है? नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, माएँ तो माँ ही होती हैं। जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, जब भी मैं इसकी खिदमत करता हूँ, जब भी मैं इसके हाथ और पैर दबाता हूँ, जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ तभी आसमान की तरफ हाथ उठाती है और मेरे लिए एक अजीब दुआ मांगती है और अल्लाह से कहती है आय अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अरे कहाँ मैं, कहाँ मूसा, वो वक्त का नबी है, मैं एक मामूली सा कसाई हूँ, मैं उसका साथी कैसे बन सकता हूँ? मूसा अलैहि सलाम ने दिल ही दिल में कहा ऐ नौजवान तेरी माँ की दुआओं को अल्लाह ने अर्श आज़म पर कबूल फरमा लिया है और तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सलमान साहब माओ की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माओ की खिदमत। मेरे नबी ने आलम शबाब में अपनी माँ को नहीं देखा, मेरे नबी छोटे से हैं, बचपन में छोटे से हैं, मक्का 6 साल की उम्र है, अबुआ नामी बस्ती पहाड़ी आई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेमन है हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरे नबी की अम्मा। अचानक दिल का दौरा पड़ा, मुझे ये तो नहीं मिला दिल का दौरा पड़ा क्या हुआ। तारीख की किताबों को बड़ा मैंने खंगाला कि अल्लाह के रसूल की अम्मा को हुआ क्या था, बीमारी कौन सी हुई थी। इब्ने असाकिर पढ़ डाली, इब्ने शाहिब हिशाम पढ़ डाली, इब्ने साद पढ़ डाली, अल बिदाया वन निहाया पढ़ डाली, लेकिन तहकीक यही यहाँ तक अधूरी रह गई कि अल्लाह के रसूल की माँ को हुआ क्या था। बस इब्ने असाकिर ने और अल बिदाया ने इतना लिखा हुआ है कि नबी की माँ बोलना चाहती थी लेकिन बोला नहीं जाता था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया। हकीम अबू अली सीना ने अपनी किताब में लिखा हुआ है जब किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ता है या अटैक पड़ता है तो बोलना चाहता है मगर उसकी जुबान से आवाज़ नहीं निकलती। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद मेरे नबी की माँ पर दिल का दौरा पड़ा था। वो 6 साल का मासूम सा बच्चा, अब अम्मा का इंतकाल हो रहा है, अब वह पहाड़ी के ऊपर मेरे नबी की माँ गिर गई। बहुत जल्दी अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ मैं, बस मोहब्बत से थोड़ी देर और सुन लीजिए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अम्मा गिर गई। जब सारा का सारा दिया बुझने को हुआ, सारी ताकत इकट्ठा की और मेरे नबी जो 6 साल के हैं, अल्लाह के रसूल, माँ अपने बेटे से कहने लगी ऐ मेरे बेटे अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, शायद आज के बाद तुझे मेरा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। ऐ मेरे बेटे हाँ घबराना मत, परेशान न होना, अनकरीब मेरी नजरें देख रही हैं कि रब्बुल जलाल तेरा नाम सारी दुनिया में रोशन करेगा। ये चंद कलिमात कह के मेरे नबी की वालिदा दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। किसने कब्र बनाई पहाड़ी के ऊपर, किसने दफन किया पहाड़ी के ऊपर, किसने जनाजा उतारा पहाड़ी के ऊपर, मुझे कहीं किसी तारीख की किताब में नहीं मिला। पता नहीं अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया होगा। अब वह बस्ती तो वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के दूरी पर है। हो सकता है कोई मुसाफिर आया हो या जिब्रील अमीन के जरिए से रब्बुल जलाल ने मेरे नबी की वालिदा की लाश को दफन करवा दिया हो। वल्लाहु आलम, ये मेरा गुमान है, वहम है, ये मेरी पूरे तौर पर कोई तहकीक नहीं है। मैंने तारीख की किताबें बड़ी खंगाली है लेकिन इस मसले में मेरी तहकीक अधूरी रह गई। मैं अर्ज कर रहा, मैं आगे की सुनो। वो मेमन फरमाती मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। मैं दूसरी तरफ जब गई, अब वापस आई हूँ तो मुझे मेरा बेटा मोहम्मद नजर नहीं आ रहा, मुझे मेरा बेटा मोहम्मद
नजर नहीं आ रहा। मैं तलाश करते करते फिर से उसी पहाड़ी पर गई तो मैंने क्या देखा, वो 6 साल का मासूम सा मेरा बेटा मोहम्मद अपनी अम्मा की कब्र से ही छुपते हुए है और रो रहा है और कह रहा है, अरे अम्मी जान तुम जानती थी। नौजवानों सुनो, माओ का मकाम मेरे नबी ने क्या बताया है। फरमाया मेरे नबी 6 साल के रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मा तुम जानती थी तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तुम ही मेरा सब कुछ है। अब्बा तो पहले ही जा चुके हैं, दादा भी कोई नहीं है, चचा भी कोई नहीं है, अम्मा तुम्हें मेरी बहन भी कोई नहीं, मेरा भाई भी कोई नहीं। अब्बा की शफकत तुम्हें से मिलती थी, बहनों का प्यार भी तुम्हें से मिलता था, अम्मा सब माँ की ममता भी तुम्हें से मिलती थी। अम्मा जान मक्के की गलियों में जब मैं गिरता था आप मुझे मेरी चोट पर मरहम लगाया करती थी। मक्का की गलियों में जब मैं खेलता था मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे, आप मेरे कपड़ों को साफ किया करती थी। अम्मी जान आप मुझे नहलाया धुलाया करती थी, अब मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। और मेमन पीछे से आई है, कंधा पकड़ के उठा रही है, बड़ी मुश्किल से मेरे नबी को उठा के लाए। ये तो बचपन के हालात हैं। अब बचपन के सुनो, हज्जतुल वदा का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। सन 9 हिजरी में तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ, सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। अल्लाह के रसूल जब हज के लिए तशरीफ ले गए, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा है। सब अबवा बस्ती जब आई सारे सहाबा को रोक दिया। तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी जिसकी दाढ़ी के 17 बाल सफेद हो चुके हैं, हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक 19 बाल सफेद हो चुके हैं। ये वक्त का बूढ़ा नबी पहुंच गया है अबवा पहाड़ी पर अपनी अम्मा की कब्र पर, और एक मासूम के बच्चे की तरीके से अपने घुटनों पर सर रखकर फफक के रोया है। पीछे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए हैं, सैयदना फारूक आजम गए हैं, अली मुर्तजा गए हैं, सैयदना अबू हुरैरा गए हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। फरमाने लगे या रसूलुल्लाह ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आप क्यों रो रहे हैं। मेरे नबी कहने लगे अबू बकर ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। हाँ आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आए बंगाल के अच्छे लोगों, आए हिंदुस्तान के नौजवानों, 55 साल के बाद वक्त के 61-63 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रोकर उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है, माओ को कभी भुलाया नहीं जाता, वालिदों को कभी भुलाया नहीं जाता। हाँ तुम तो यहाँ अब्बा के इंतकाल के बाद उनके कब्रों के निशान भी भूल जाया करते हो। मेरे नबी तो फरमाते हैं माओ को कभी भुलाया ना करो। हाँ आलम शबाब में मेरे नबी ने अपनी माँ को नहीं देखा। माओ की खिदमत करो, वालिदों की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ मदारिस को मजबूत करो। अपनी अम्मा अगर रब माँ रूठी हुई है, रमजान का महीना आ रहा है, तुम लाख रोजे रखो, लाख तराबिया सुनो, लाख पूरे तौर पर कुरान करीम की तिलावत करो। उस बेटे के रोजे अल्लाह की बारगाह में मकबूल है ही नहीं जिसके वालिदैन उससे नाराज हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। अगर रमजान अच्छा बन करना चाहते हो, रमजान अच्छा करना चाहते हो तो माओ की खिदमत करो। यहाँ जलसे से उठ करके जाना, अपनी अम्मा के पैर पकड़ लेना, अम्मा जान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर देखिए आपने मुझे माफ ना किया, मेरी नमाजें रोक ली जाएंगी, मेरे रोजे रोक लिए जाएंगे, मेरे सदका खैरात रोक लिए जाएंगे, अच्छे मामलात अच्छे इखलाक रोक लिए जाएंगे। अपनी माओ की खुशामद करना, वालिदों की खुशामद करना, माओ को मनाओगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं इंशाअल्लाह अपनी माओ को मनाएंगे, अपनी माओ को मनाएंगे इंशाअल्लाह मनाएंगे। हाँ दूसरा अपनी बहनों की खबरगिरी करेंगे, बहनों की खबरगिरी करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की भी हम खबरगिरी नहीं करते। एक बहन का मेरे पास फोन आया, मौलाना रोने लगी, कह लगी हजरत जी मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, जिस दिन से अब्बा का इंतकाल हो गया भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं गरीब हूँ, फोन करती हूँ भाई फोन काट देते हैं कि बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भैया से कह दीजिए मुझे भाइयों की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तो भैया के प्यार की जरूरत है। बहना तुम्हें बहुत याद करती है। जब उस बहन ने मुझसे ये कहा मैंने दिल में महसूस ये किया है बहनें भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। आए उम्मत के नौजवानों, बहुत कसीर तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं। मैं इन सब से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अगर तुम पूरे तौर पर हफ्ते में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन कम से कम हफ्ते
में एक मर्तबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करो। करोगे इंशाल्लाह? हफ्ते में एक मर्तबा फोन करके खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। बाजी साहिबा आप कैसी हैं? अप्पी जान आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ईद का मौका आता है, अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलाओ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, कम से कम 500 का सूट अपनी बहन को भी दिला दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहन मोहल्ले भर की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरा भाई लाया है, देखो ये मेरे मैके से आया है, मेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल रखता है। हाँ हाँ, कभी कभी अपने भांजों को, नन्हे नन्हे भांजों को, बहन के बेटों को 100-200 के शूज दिला दिया करो, खिलौने दिला दिया करो। अपने बच्चों को हजारों देते हो, अपने बच्चों पर हजारों खर्च करते हो, कभी कभी अपनी बहनों के बेटों को भी दे दिया करो। आपका बेटा आपके 10,000 के गिफ्ट पाने के बाद भी एक मर्तबा आपको थैंक्स नहीं कहता, लेकिन आप अपने भांजे को अगर 200 रुपए के खिलौने देंगे तो वो आपके पीछे पीछे फिरता फिरेगा। देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है उस दिन बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। जानते हैं क्यों? कि आज अब्बा का जनाजा उठ गया, इस घर से मेरा रिश्ता टूट गया। अपनी बहनों को नाकहार कहने दिया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। कभी कभी अपनी बहनों को मैके लेने पहुंच जाया करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है। हाँ हाँ, बचपन में हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बचपन में एक आंगन में पले बढ़े हैं, एक माँ का दूध पिया है। हाँ हाँ, मुझे याद है अब्बा जान, हम छोटे छोटे थे, अब्बा जान बाजार से कोई खाने की चीज लाते थे, बहना मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, लेकिन तू अपने हिस्से से मुझे, अपने हिस्से से भी पूरे तौर पर मुझे हिस्सा दे दिया करती थी। अरे बहना मुझे याद है हम सब बचपन में एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाया करते थे। कभी कभी अपनी बहनों के पास बैठ लिया करो, कभी कभी अपनी बहनों के पास 10 मिनट निकाल लिया करो। बूढ़ी बहन हो गई तो क्या हुआ, कभी कभी उसके हाथ पकड़ लिया करो। बहना तो मेरी वही बहना है ना जो इन हाथों से मुझे खिलाया करती थी, जो इन हाथों से मेरे सर में तेल लगाया करती थी, जो इन हाथों से पूरे तौर पर मेरे बदन को छुआ करती थी। बहना मुझे याद है मैं छोटा था, जब मेरे सर में दर्द होता था तो घंटों मेरे सर में मालिश किया करती थी। बहना मुझे याद है जब मैं स्कूल पढ़ने जाता था कोई बच्चा मुझे छेड़ देता था तो बावजूद कमजोर होने के बदला लेने को तैयार हो जाया करती थी। अरे बहना अब तू बूढ़ी हुई तो क्या हुआ, तेरा भाई हमेशा तेरा साथ देगा, कहेंगे इंशाल्लाह, बहनों की खबरगिरी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी ने, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी तरबियत करे, पढ़ाए लिखाए, अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी अपनी बहनों की खबरगिरी करता रहे, उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है कि बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का फरमान है, ये मेरे नबी का फरमान है। बेटियों की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो, माओ की इज्जत करो, यतीमों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, ज़ईफों की मदद करो। इन मदरसों में कभी झांक करके देख लिया करो। तुम तो अपने बच्चों को हफ्ते में 2 मरतबा बकरे का गोश्त खिलाते हो, मटन खिलाते हो, कभी इन मदरसों में भी देख लिया करो। यहाँ पूरे तौर पर ठीक से दाल भी नहीं मिलती, ठीक से चावल भी नहीं मिलती। इन उलमा की खबरगिरी किया करो, इनके कपड़ों का इंतजाम किया करो, इनको खूब हदिया दिया करो, यही तुम्हारे काम आएगा। इनकी जरूरियात तुम पूरी करो, इंशाअल्लाह ये रात के तहज्जुद में उठकर तुम्हारे लिए दुआ
کریں گے اللہ تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا, تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا. یحییٰ برمخی ایک بادشاہ گزرا ہے, مالک بن دینار, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا مالک بن دینار, ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے. ایک اللہ والے کو ہر مہینے 1000 اشرفیہ دیا کرتا تھا, ہر مہینے 1000 اشرفیہ فری میں دیا کرتا تھا کہ حضرت اس سے اپنا خرچہ چلائیں. جب پورے طور پر یحییٰ برمخی کا انتقال ہوا, جب تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے, کیا گزری تم پر. یحییٰ کہنے لگا ساری حکومت کو آگ لگ گئی. جو میں 1000 اس اللہ والے کو دیتا تھا اور 1000 اشرفیاں پانے کے بعد جو راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کرتا تھا, اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. ہاں ہم سب غریبوں کی مدد کریں, کمزوروں کی مدد کریں. میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک. فرمایا ضعیفوں کی مدد کرو, کمزوروں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, افطاری کے وقت تمہارے دسترخوان پر اگر 20 قسم کی نعمتیں ہو, پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو کہیں کوئی یتیم بچہ لاچار تو نہیں پڑا ہوا ہے, کہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پورے طور پر پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہو. ہاں تمہارے لیے وہ سحری اور افطاری حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی پانی سے پورے طور پر روزہ افطار کر رہا ہے اور تم کوڑ میں اور خجور سے روزہ افطار کر رہے ہو. اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ غمخواری کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے. عید کا مہینہ, اس کے بعد عید کا مہینہ آنے والا ہے. اب میں آپ سے اپیل کروں گا, آپ اپنے لیے 10,000 کا جوڑا بنواؤ, 20,000 کا جوڑا بنواؤ, اپنے بچے کو 10,000 کے گفٹ دلاؤ, لیکن پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو اگر کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی کمزور ہے, اس کو بھی 100-200 کے کپڑے ہدیہ کر دو. اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عید کا دن ہے, میرے نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں, تمام بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, آنکھوں میں کاجل نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, پیروں میں چپل بھی نہیں ہے. میرے نبی اس کے قریب گئے, بیٹا عید کا دن ہے, تو خوشی نہیں منا رہا, سارے بچے کھیل رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ, ان کے ابا موجود ہیں, میرے ابا تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ان کی اماں موجود ہیں, میری اماں تو اللہ کے پاس جا چکی ہے. حضرت جی میں یتیم ہوں, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, چپلیں نہیں ہیں, میرے کو مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے. میرے نبی رونے لگ گئے. کہا بیٹے رویا نہیں کرتے, تو بھی یتیم ہے, تیرا نبی بھی یتیم ہے. بیٹا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے؟ سبحان اللہ, کیا فرمایا, محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے اور محمد تیرا باپ بن جائے. فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جا بیٹا, آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. میرے نبی واپس لائے اس بچے کو اپنے گھر میں. اما عائشہ کو آواز دی, حمیرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ دیکھو اس کے امی نہیں ہے, میرے بھی امی نہیں ہے, اس کے بھی ابو نہیں ہے, میرے بھی ابو نہیں ہے, یہ بھی یتیم ہے, میں بھی یتیم ہوں. عائشہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے, میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے. میرے نبی, اما عائشہ نے فرمایا اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا اے بیٹے اگر محمد آج سے تیرا باپ ہو چکا ہے تو آج سے عائشہ تیری ماں بن گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ, آنکھوں میں کاجل لگاؤ. اما عائشہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا, آنکھوں میں کاجل لگایا, سر کے بالوں میں تیل ڈالا. جب بچہ تیار ہو گیا میرے نبی نے اپنی چادر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑا, ایک یوں تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا, دوسرا یوں کندھے سے نیچے ڈال دیا. وہ بچہ ساتھ ساتھ میرے نبی کے چلنے لگا. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو پیدل نہیں چلے گا, مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے, مجھے امت کو ضعیفوں کا مقام بتانا ہے, کمزوروں کا مقام بتانا ہے. آج تیری سواری محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے. اللہ اکبر کہیے, آج تیری سواری مجھ محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے. اور میرے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور اسی گلی سے نکلے ہیں جس گلی سے وہ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم یتیم سمجھتے تھے, غریب
कमजोर समझते थे, मैला कुचैला समझते थे, उसको हम अपने पास खिलाते नहीं थे, वो नबी के कंधों पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा, आए मेरे भाइयों, तुम मुझे यतीम समझते थे ना, गरीब समझते थे ना, अब मैं गरीब नहीं हूँ, देखो अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब मैं नबी का बेटा बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, अब नबी ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, अब अम्मा आयशा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। हाँ हाँ, देखो मुझको नहलाया अम्मा आयशा ने है, आंखों में काजल लगाया अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में तेल डाला अम्मा आयशा ने है, देखो कपड़ा चादर पहनी मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तारीख इब्ने असाकिर में है, अल बिदाया व निहाया है, तारीख इब्ने साद में इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैहि ने 1211 साल पहले लिखा, मक्के के मदीने के वो बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, काश काश हम भी यतीम होते, काश हमारे भी अब्बा ना होते, काश हमारे भी अम्मा ना होती, काश मैं भी यतीम होता, हमको भी नबी अपना बेटा बनाते, हमको भी अम्मा आयशा अपना बेटा बनाती, हाय काश मुझको तौर पर अम्मा आयशा कपड़ा पहनाती, आंखों में काजल अम्मा आयशा डालती, तेल बालों में अम्मा आयशा लगाती, काश मैं भी यतीम होता, काश मेरे भी अब्बा ना होते।